دہشت گرد ایک ایسے نوجوان کی داستان جس سے بچپن میں جائیداد، عیش و آرام، اپنوں کا پیار، رشتے چھین لیے گئے۔ حالات کے چنگل میں پھنس کر وہ جرائم کی دنیا میں داخل ہوا۔ محب وطن ہوتے ہوئے ملک دشمن قرار دیا گیا۔ انڈیا گیا تو قدم قدم پر موت نے گھیرا، مگر اس نے انڈیا میں انڈیا کی بینڈ بجائے رکھی۔ داستان کی طرف جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کر کے اپنی محبت کا ثبوت دیں۔ ایک دل ہلا دینے والی داستان، دہشت گرد۔ دہشت قسط نمبر 22۔ مگر اس کی اتنی جرت کیسے ہوئی کہ وہ مجھے قیدی بنائے؟ گلوریا بفر کر بولی۔ جرت تو اب اس کی ہو گئی ہے۔ میں نے کہا پھر خواب کا غصہ کر کے اپنی انرجی کو تباہ کر رہی ہو، اسے میں تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کیا تم دروازے کا لاک کھول نہیں سکتے؟ اس نے پوچھا۔ کھول سکتا ہوں مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہم فی الحال یہاں سے فرار نہیں ہو سکتے۔ اس بنگلے میں نہ جانے کتنے مسلح محافظ ہو گئے۔ بالفرض ہم محافظوں سے بچ بھی گئے تو یہاں اتنے خونخوار کتے ہوں گے کہ وہ لمحوں میں ہماری ٹکا بوٹی کر دیں گے۔ میں نے جواب دیا، تم کیا جانو کہ یہاں کتے بھی ہیں؟ گلوریا نے مجھے گھورتے ہوئے پوچھا۔ یہ جاننا کون سا مشکل کام ہے؟ میں نے ہنس کر کھڑکی کا پردہ ہٹایا اور کہا خود بھی دیکھ لو۔ وہ چپٹ کر کھڑکی پر پہنچ گئی اور پردہ ہٹا کر باہر دیکھنے لگی۔ پھر وہ منہ میں بڑبڑائی، یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی ڈاگ ہاؤس میں آ گئے ہیں۔ ڈاگ فارم کہو، میں نے ہنس کر بولا۔ ممکن ہے وڈیرا کتوں کا کاروبار کرتا ہو، وہ ارب پتی ذمہ دار ہے، اسے بھلا یہ گھٹیا کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ گلوریا خود کلامی کے انداز میں بولی۔ سنا تو میں نے بھی تھا کہ وڈیرا اعلیٰ نسل کے کتے پالنے کا شوقین ہے، مگر اتنے کتے؟ اس نے اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اچانک قفل میں چابی گھومنے کی آواز سنائی دی تو گلوریا سنبھل کر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر برہمی کے آثار تھے۔ پھر کمرے کا دروازہ کھلا اور سوٹ میں ملبوس ایک وحجی اور باوقار شخص اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر رعب و دبدبا تھا کہ دیکھنے والا خواہ مخواہ مرعوب ہو جاتا۔ مجھے اس کی شکل کچھ جانی پہچانی سی لگ رہی تھی۔ اس کے ساتھ انتہائی حسین دو لڑکیاں بھی کمرے میں داخل ہوئیں۔ وہ دونوں اتنی حسین تھی کہ چند لمحے کو میں بھی پلکیں چپکانا بھول گیا۔ سب سے پیچھے خونخوار قسم کے دو گن مین تھے، ان کے ہاتھوں میں گنز تھی اور ان کا رخ میری طرف تھا۔ یہ سب کیا ہے مسٹر بخش؟ گلوریا نے باروب لہجے میں پوچھا۔ میں چونک اٹھا۔ یہ وڈیرا احمد بخش تھا۔ میرا خیال تھا کہ وہ روایتی ذمہ داروں کی طرح وڈیرا احمد بخش بھی شلوار قمیض اور پگڑی میں ہوگا، مگر جو آدمی میرے سامنے کھڑا تھا وہ اس کے بالکل برعکس تھا۔ پھر مجھے یاد آ گیا کہ میں نے اخبارات میں اس کی تصویر دیکھی تھی۔ وہ سیاست میں بھی سرگرم تھا۔ مجھے افسوس ہے مس گلوریا، وڈیرے نے بہترین قسم کی انگلش میں کہا، مگر بائی کمانڈ مجھے یہی حکم ملا تھا کہ آپ کو گرفتار کر لیا جائے۔ وہ سانس لینے کو رکا، پھر بولا، ہائی کمان کا آدمی آج رات یا کل صبح تک یہاں پہنچ جائے گا۔ آپ کو اس کے حوالے کرنے کے بعد میری ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔ اور پھر کیا حکم ہے؟ میں نے استہزائی انداز میں پوچھا۔ جناب، مجھے قید کرنے کی زحمت کیوں کی؟ تم سے تو مجھے بہت کام لینا ہے کامران۔ آپ نے بہت دیر کر دی سائیں۔ میرا لہجہ اب بھی استہزائیہ تھا۔ اب تو مجھے گلوریا کے عشق نے نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے، کام کے۔ زیادہ بھونکنے کی کوشش مت کرو۔ احمد بخش ایک دم آپے سے بہر ہو گیا۔ زیادہ بکواس کرے گا تو ابھی تجھے اپنے کتوں کے آگے پھنکوا دوں گا۔ تیری زندگی تو یوں بھی میرے پاس گروی ہے، جب چاہوں تجھے قانون کے حوالے کر دوں۔ تو قانون کی نظروں میں دہشت گرد ہے، اور نہ صرف پولیس بلکہ ملک کی کئی خفیہ ایجنسیاں تجھے تلاش کر رہی ہیں۔ تم یہ کیوں بھولتے ہو کہ مجھے فرار کرانے میں تمہارا بھی ہاتھ ہے؟ میں نے جواب دیا، تم بھی میرے اس جرم میں برابر کے شریک ہو۔ احمد بخش بے اختیار مسکرانے لگا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے میں نے کوئی بہت ہی اہم کانہ بات کہہ دی ہو۔ پھر وہ ہنستے ہنستے سنجیدہ ہو کر بولا، تو میرا نام لے گا؟ میرا رئیس احمد بخش
कौन यकीन करेगा तेरी बात का। मैंने पूछा। वो ठीक ही कह रहा था। भला वडेरे अहमद बख्श के मुकाबले में एक बदनामी ज़माना दहशतगर्द की बात का कौन यकीन करेगा। मुझे खामोश देखकर वडेरा तंजिया लहजे में बोला, बस निकल गई तेरे गुब्बारे से हवा, मेरे कहने पर चलेगा तो फ़ायदे में रहेगा। मैंने फ़िलहाल उसे छेड़ना मुनासिब न समझा। उससे कुछ बैद नहीं था कि वह मुश्किल होकर वाकई मुझे कुत्तों के सामने पकड़वा देता। मिस्टर अहमद बख्श, ग्लोरिया ने सख्त लहजे में बोली, तुमसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, ये मेरी और हाई कमांड की लड़ाई है। तुम दरमियान में ना बोलो तो बेहतर है। तुम्हारे हक में यही मुनासिब होगा कि तुम हम लोगों को यहाँ से जाने दो। आज नहीं तो कल हाई कमांड से मेरी सुलह हो जाएगी, फिर तुम्हारी क्या पोजीशन होगी। डेरा गहरी सोच में डूब गया। वो अभी तक खड़ा हुआ था। दोनों लड़कियां उसके दाएं और बाएं पत्थर के बुतों की तरह खड़ी थी। इनमें से एक लड़की बहुत गौर से मुझे देख रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने जल्दी से निगाहें चुरा ली, गोया उसकी चोरी पकड़ी गई हो। वैसे अब तक मेरी समझ में नहीं आया था कि इन दोनों लड़कियों की यहाँ मौजूदगी का क्या जवाब था। चंद लम्हे गौर करने के बाद अहमद बख्श ने कहा, नहीं ग्लोरिया, मैं अब तुम्हें आज़ाद नहीं कर सकता। आज रात में किसी भी वक्त हाई कमांड का नुमाइंदा यहाँ पहुँचने वाला है। मैं हाई कमांड को इतला दे चुका हूँ कि ग्लोरिया मेरे कब्जे में है। अब तुम इन लोगों को ना मिली तो मैं इन्हें क्या जवाब दूंगा। अहमद बख्श का लहजा फैसला कुन था। और नुमाइंदा कौन है, ग्लोरिया ने पूछा। मुझे नहीं मालूम, वहाँ से किसे भेजा जा रहा है, वडेरे ने जवाब दिया। अब लगे हाथों ये भी बता दो कि कामरान से तुम क्या काम लेना चाहते हो। मैं एक आदमी को कत्ल कराना चाहता हूँ, अहमद बख्श ने इत्मीनान से कहा। ये काम अपने आदमियों से भी ले सकता था, मगर फ़िलहाल कोई स्कैंडल मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर मेरा कोई आदमी हलाक या गिरफ्तार हो गया तो पुलिस की गाड़ियाँ फ़ौरन मेरे घर पहुँच जाएगी। अभी तो आप कह रहे थे कि पुलिस और कानून सब मेरी मुट्ठी में है, और अब ये कत्ल होने वाली शख्सियत कोई मामूली नहीं है। अहमद बख्श ने मेरी बात काट दी। तो क्या अमेरिका के सदर को कत्ल कराने का इरादा है? मैंने फिर तंज किया। अमेरिका के सदर को नहीं, बल्कि मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कत्ल कराना चाहता हूँ, अहमद बख्श ने बहुत इत्मीनान से जवाब दिया। मैं उछल कर खड़ा हो गया और बोला, तुम क्या समझते हो, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को कत्ल करना कोई बच्चों का खेल है? मैं ये काम नहीं कर सकूँगा। मैं तुम्हें शाम तक सोचने की मोहलत देता हूँ, अहमद बख्श ने इत्मीनान से कहा। इसके बाद मैं पुलिस को फ़ोन कर दूंगा कि मफरूर दहशतगर्द कामरान मेरे कब्जे में है। बाकी काम पुलिस और कानून नाफिज करने वाले अदारे खुद ही संभालेंगे। फांसी का फद्दा तो यूँ भी तुम्हारा मुकद्दर है, फिर कुछ करके क्यों ना मरा जाए। ठीक है, मैं इस बात पर गौर करूँगा। ओके, अहमद बख्श को दिल्ली से हंसा। मैं अब तुम लोगों के लिए नाश्ता भिजवाता हूँ, तुम्हें भूख लग रही होगी, बाकी बातें बाद में होंगी। मैंने उसे मज़ीद मुश्तल नहीं किया, क्योंकि वाकई भूख के मारे मेरा दम निकला जा रहा था। खा पी कर मैं यकसोई से इस पर गौर करना चाहता था। अब हमें क्या करना चाहिए? वो जाने लगा तो मैं बेख्तियार पूछ बैठा, इन दोनों फितनों का तारफ़ तो कराते जाओ। अहमद बख्श फखरी अंदाज में मुस्कुराया और बोला, ये दोनों मेरी पर्सनल असिस्टेंट हैं। इस वक्त मेरी नज़र फिर उस लड़की पर पड़ी जो मुझे मुसलसल घूर रही थी। वो इस वक्त भी मुझे पुरशौक नज़रों से देख रही थी। मुझसे नज़रें मिलते ही उसने जल्दी से नज़रें झुका ली। दोनों गार्ड्स भी रोबोट्स की तरह चलते हुए अहमद बख्श के पीछे बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद दरवाज़ा एक मरतबा फिर लॉक किया गया। मैंने ग्लोरिया की तरफ देखा, वो मारे गुस्से के पेचोताप खा रही थी। मैंने उसे छेड़ना मुनासिब न समझा। थोड़ी देर बाद वही लड़की खाने की ट्राली लिए कमरे में दाखिल हुई, जो मेरी तरफ देखती रही थी। दोनों गन थामे इनके पीछे खड़े थे। वो खाने की ट्राली हमारे नज़दीक छोड़कर जाने लगी तो मैंने शौक लहजे में कहा, ऐ खामोश हसीना, अपना तारफ़ तो बताती जा। फ़ज़ा का ये जमूद टूटे के फ़ज़ा में तेरे आने की महक खुशबू से महक उठे। मेरी बात का जवाब दिए बगैर तेज़ी से बाहर निकल गई। ट्राली में नाश्ता किया खाना भरा हुआ था। अंडे, मक्खन, स्लाइस, रोस्ट चिकन फ्राई, कीमा और तरतराते हुए गरम पराठे। वो चीज़ें देखकर मेरी
भूख बढ़ गई और मैंने न आओ देखा न ताओ ट्राली अपनी तरफ खिसका कर खाने पर टूट पड़ा। ग्लोरिया भी मेरा साथ दे रही थी। हम दोनों ने खूब डट कर खाना खाया। खाने से फारिग होने के बाद ग्लोरिया आसूदा लहजे में बोली, बस अब गर्मा गर्म चाय भी मिल जाए तो क्या बात है। ट्राली के निचले खाने में चाय भी मौजूद है और सिगरेट के कुछ पैकेट भी, मैंने हंसकर कहा और चायदानी टी कोजी हटा दी। ग्लोरिया किसी गहरी सोच में गर्क थी। वो चाय भी बेदिली से पी रही थी। फिर वो खुद कलामी के अंदाज में बोली, कामरान, हमें हर सूरत में आज यहाँ से निकलना है। आई आर करेक्ट? चाहता तो मैं भी यही हूँ, मगर यहाँ से निकलना नामुमकिन है। मैंने इशारे से खामोश रहने को कहा। वडेरा आमद बख्श आदमी नहीं है। मैं ये कहता हुआ बेड की साइड टेबल के पास पहुंच गया। वहाँ से मैंने एक बॉल पॉइंट और राइटिंग पैड देखा था। मैंने पैड पे लिखते हुए अपनी गुफ्तगू जारी रखी। अगर वडेरा हमसे कोई काम लेना चाहता है तो उसका काम करने में हर्ज क्या है। इस दौरान मैंने पैड पर लिखा कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये कमरा, इस कमरे में गुफ्तगू करना ठीक नहीं है। हमें मुहतात रहना चाहिए। मैंने पैड ग्लोरिया की तरफ बढ़ाया और बुलंद आवाज़ में बोला, जहाँ तक तुम्हारा मसला है वो तो मैं भी इतना परेशान कुन नहीं हूँ। हाई कमांड से आने वाले शख्स के नाम तुम अपनी सफाई पेश कर सकती हो, सामने अपनी सफाई पेश कर सकती हो। बात सफाई पेश करने की नहीं बल्कि असूली नवीयत के इख्तलाफात की है। आने वाला मुझसे मुतफिक नहीं हुआ तो ला महल्ला मुझे हाई कमांड के सामने झुकना पड़ेगा। मैं भी यही चाहता हूँ। मैंने आंख मारते हुए कहा, यहाँ से बाहर निकलना तो नामुमकिन है। वडेरे के मुहाफ़िज़ भी उस्ताद और चाको चौबंद हैं। फिर सबसे बढ़कर उसने बेखौफार कुत्ते हैं जो आनन फानन तिक्का बोटी कर देंगे। लिहाजा यहाँ से निकलने का ख्याल दिन से निकाल दो। फिर हम देर तक आमद बख्श को सुनाने के लिए इस किस्म की गुफ्तगू करते रहे। अचानक दरवाज़ा खुला और वही मुलाजमा अखबारात और मुख्तलिफ रसायल लिए मेरे कमरे में दाखिल हुई, जो इससे पहले हमारे लिए चाय लाई थी। इस दफ़ा भी उसके पीछे पीछे वही रोबोट किस्म का गार्ड मौजूद था। मैंने फिर उसे मुखातब किया, ऐ खूबसूरत लड़की, तुमने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। शायद हम तुझे पसंद नहीं आए। लड़की का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। गार्ड की तरफ उसकी पुश्त थी। उसने अखबारात और मैगजीन मेरे हवाले करते हुए बहुत सफाई से तय किए हुए एक कागज़ मेरे हवाले कर दिया और बगैर कुछ कहे मुस्कुराती वहाँ से चली गई। उसकी ये हरकत ग्लोरिया की तेज़ नज़रों से छुप ही न रह सकी। वो दरवाज़ा बंद होने के बाद शोख लहजे में बोली, ओहो, अब ये होगा, दिखाओ मुझे। मैंने जल्दी से होठों पर उंगली रखकर उसे खामोश रहने का इशारा किया। वो शायद भूल गई थी कि आपस में हमें ज़ोर से नहीं बोलना चाहिए। मैंने जल्दी से तय किया हुआ कागज़ खोल लिया। इसमें लिखा था, कामरान साहब, आप मुझसे बात करने की कोशिश ना करें। इस बंगले के कई कमरे ऐसे हैं जहां आपकी आवाज़ रिकॉर्ड की जा रही है। आपकी पूरी गुफ्तगू वडेरा उसके ख़ास आदमी सुन रहे हैं। आप मेरा नाम पूछ रहे थे। मेरा नाम रूबी है और 4 बरस पहले वडेरे के आदमियों ने मुझे अगवा किया था। मैं खुद भी इसकी कैद से निकलना चाहती हूँ, मगर अकेली नहीं निकल सकती। मेरे पास एक ऐसी चीज़ है कि कुत्ते आपके नज़दीक भी नहीं आएंगे। वो चीज़ मुझे वडेरे के एक नौकर ने ला कर दी थी। एक तरह से वो भी कैदी था। फिर न जाने कैसे वडेरे को इसके बागियाना ख्यालात की भनक मिल गई। उसने उसे कुत्तों के आगे डाल दिया। हर महीने यहाँ यही कुछ होता है। वडेरे के कुत्ते आदमखोर हो चुके हैं। उनके मुंह को इंसानी खून लग गया है। आपको ये बातें बताकर मैं अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा रही हूँ, मगर मैं ऐसी ज़िंदगी से भी तंग आ चुकी हूँ। न जाने क्यों दिल कह रहा है कि आप पर भरोसा कर लो। आप मुझे भी यहाँ से निकालने का वादा करें तो मैं वो चीज़ आपको दे सकती हूँ जो आपको कुत्तों से महफूज रखेगी। इंसानों से निपटना आपका काम। जानी समेत इस बंगले में 6 मुहाफ़िज़ हैं। मौका मिला तो किसी भी वक्त आपको इस बंगले का नक्शा भी बना कर दूँगी। फ़कत रूबी। ग्लोरिया बुरी तरह बेचैन हो रही थी। खत में आखिर क्या लिखा है?
रूबी का खत पढ़ने के बाद उसके चेहरे से दबा दबा जोश ज़ाहिर होने लगा। उसने जल्दी से पैड पर लिखा, इस लड़की से कह दो कि हम उसे साथ लेकर निकलने को तैयार हैं। मैंने राइटिंग पैड का एक वर्ग फाड़ कर इस पर लिखा कि हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है, अब निकलने की तैयारी करो। रूबी लंच के लिए लेकर आई तो मैंने अपना जवाब उसे थमा दिया। शाम की चाय पर उसने मुझे एक बंडल दिया, इसमें एक पर्चा भी था। हैरत तो मुझे ये थी कि उसने वो बंडल गार्ड की मौजूदगी में मेरे हवाले किया था और वो खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। फिर दोनों वापस चले गए थे। मैंने ग्लोरिया से चाय बनाने को कहा और खुद रूबी का दिया हुआ खत खोल लिया। उसने लिखा था, इस बंडल में बर्फानी चीते की चर्बी है, इसे जिस्म पर मल लेंगे तो कुत्ते नज़दीक नहीं आएंगे, क्योंकि कुत्ते बर्फानी चीते की बू से खौफजदा हो जाते हैं। यहाँ मेरे इत्मीनान का एक आदमी और है, उसका नाम दीनू है। मैं रात किसी भी वक्त उसके साथ आऊँगी। आप और ग्लोरिया तैयार रहे रवानगी के लिए। खत पढ़कर ग्लोरिया बहुत खुश हो गई थी, मगर उसकी खुशी आरजी साबित हुई।